Today we will be having a live session on understanding approaches for cancer care with Dr. Paki Agarwal. Thank you so much, Doctor, for joining us. Dr. Paki Agarwal is a senior consultant in gynecology, oncology, robotic surgery, and she has joined us to enlighten us about cancer care. Who is at a higher risk of being affected by cancer? Yes, I think that's a very pertinent question because everybody has this question. My cousin got cancer, my family member got cancer, will I get cancer? So it's a very pertinent question. Now, there is no one reason why one person develops cancer. There is no exact reason, and another doesn't, with the same lifestyle, with the same genetics. But research has told us that there are certain risk factors which increase your risk for developing cancer. One of them is your age. So as we grow older, the risk of cancer rises, and this is for all cancers across the spectrum. But that is something we cannot reverse age in today's date, right? So that is not a risk factor we could prevent. But then there are others like the lifestyle, which play a very important role. Now here, if you are exposed to certain cancer-causing agents, for example, HPV virus is one such which causes cervical cancer. There are other agents which are linked to lung cancer, exposure to asbestos and some kind of fumes. So those are the environmental ones which we can protect ourselves from. In addition, the other ones are smoking. So smoking has a direct link to lung cancer, but also other cancers like colon cancer and bladder cancer. And then alcohol intake. All of these are lifestyle risk factors. Another very big risk factor when it comes to lifestyle is the body weight. So if you are overweight, then your risk of developing cancers which are specifically linked to the hormones, such as uterine cancer, such as breast cancer, such as colon cancer, go up dramatically. So these are some of the risk factors. Of course, there is 5 to 10% of cancers are also due to genetics. So having faulty genes predisposes you, and those are the cancers we see in young patients, and who generally would say that we have a very healthy lifestyle. We don't know why we develop the cancer. So there is genetics at play as well. So if I have to sum it up, it is age, it is lifestyle, it is the environment that we live in, it is our genetic makeup, and also it is our family history which predisposes or protects us from cancers. हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर, एंड हमें कौन से टेस्ट लेने चाहिए ताकि हम इसका जो रिस्क है वो रिड्यूस कर सकें? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। जब हम कैंसर की बात करते हैं तो जो नेक्स्ट सबके दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर ये सारे रिस्क हैं तो हम इन रिस्क को कैसे मिटिगेट या कम कर सकते हैं, हम क्या अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं कि हमारा रिस्क ना बढ़े। तो अगर हम इसको एक एक करके लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि वजन, ओवरवेट होना एक बड़ा रिस्क है। तो अगर हम अपना वेट नियंत्रण में रखते हैं, एक्टिव रहते हैं, कुछ डेली एक्सरसाइज करते हैं, वेट को अनरियलिस्टिकली नहीं बढ़ने देते, तो हम एक तरह से प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कैंसर के डेवलप होने। उसके अलावा अगर हम अल्कोहल और ये स्मोकिंग का सेवन बहुत नियमित करके कम कर देते हैं या बिल्कुल बंद कर देते हैं, जो कि आइडियल होगा, तो भी हम रिस्क प्रिवेंशन करते हैं। फिर जो एक्सपोजर टू कार्सिनोजेंस की जो मैंने बात कही कि कोई ऐसे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं जिनको हम एक्सपोज हो सकते हैं, जैसे कि एचपीवी वायरस की अगर हम बात करें तो उसके लिए कैंसर जो वैक्सीन है वो अवेलेबल। सो एचपीवी वायरस को हम बॉडी में संक्रमण करने से रोक सकते हैं अगर हम ऑलरेडी टाइमली वैक्सीनेटेड हैं, एज अप्रोप्रिएट टाइम पर। तो ये तो हो गए सारे चीजें जो हम चेंज कर सकते हैं, या इनको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, कि हम रिस्क फैक्टर्स को उभरने ही ना दें, हम उसके पहले ही इनको कंट्रोल करें। फिर हम आते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन पे। सेकेंडरी प्रिवेंशन में होता है कि अगर हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है तो हम क्या टेस्ट कर सकते हैं, जिनको हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। हम क्या टेस्ट ले सकते हैं, कर सकते हैं, जिनसे कि हमारे कैंसर का रिस्क, अगर हमें रिस्क है तो हम उसे जल्दी डिटेक्ट कर लें, अर्ली स्टेज में या प्री कैंसर स्टेज में, जिससे कि वो आगे जाके खतरनाक बीमारी ना बने।
तो ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं कुछ कैंसर्स के लिए एस्टैब्लिश्ड हैं, कुछ कैंसर्स के लिए नहीं है। तो सब कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होते, लेकिन जिन जिन के लिए होते हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर एक कैंसर है जिसका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसको हम पैप टेस्ट बोलते हैं। ये सब महिलाओं को रेकमेंडेड है 25 साल से 65 साल की उम्र के बीच में, और इस टेस्ट को हम हर 3 साल में करते हैं, ये देखने के लिए कि सर्विक्स में कोई ऐसे चेंजेस तो नहीं है जो आगे जाके कैंसरस बन जाएंगे। तो एक ये स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया। उसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है उनमें डिटेक्ट करने के लिए। तो जैसे कि कोलन कैंसर का अगर बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क है तो कोलोनोस्कोपी एक टेस्ट होता है जिसमें अंदर से कैमरा डाल के देखते हैं कि कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे। ऐसे ही बच्चेदानी का जो कैंसर है उसके लिए भी हम बायोप्सी लेके या एमआरआई से स्क्रीन करते हैं, जिनमें बहुत हाई रिस्क है। हर एक के लिए नहीं होते ये टेस्ट, जो सब के लिए होते हैं उसमें सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग सबसे वेल एस्टैब्लिश्ड टेस्ट। बट और जो आप एनुअल हेल्थ चेकअप जैसे कराते हो आप अपना, सब लोग आजकल कॉर्पोरेट्स में हैं, सब लोग अपने हेल्थ के बारे में काफी अवेयर हैं, और कंपनीज भी कहती हैं कि हमारे एम्प्लॉयज फिट रहें, हेल्दी रहें, तो सबका एनुअल हेल्थ चेकअप होता है, पैकेज में इंक्लूडेड होता है। तो अब जब वो चेकअप आप कराते हो तो उसमें अगर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो डिटेक्ट होते हैं तो उनपे बैठना नहीं चाहिए, उनको हमेशा फर्दर इवेल्युएट कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसा डिटेक्ट हुआ, आपको लगेगा नहीं मुझे तो सिम्टम थे ही नहीं, ये सब कहाँ से आ गया। तो जरूरी नहीं है कि शुरुआती बीमारी में सिम्टम तुरंत से आ जाए। ज्यादातर जब सिम्टम आते हैं इसका मतलब है बीमारी जड़ पकड़ चुकी है और अब अपना रंग दिखा रही है। तो जो इनिशियल पार्ट है जहाँ पे हम प्रिवेंशन का रोल आता है वो जनरली तब है जब आप का ये डिटेक्ट हुआ है विदाउट, मतलब आप डॉक्टर के पास प्रॉब्लम से नहीं गए, आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में कुछ ऐसा आया जिसमें इंडिकेट हुआ कि आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए और इसको फर्दर इवैल्यूएट करा लेना चाहिए। तो ये होते हैं। और रिड्यूसिंग, ये तो हो गए रिस्क रिड्यूसिंग आपके लाइफस्टाइल में और टेस्ट। कुछ कैंसर ऐसे भी हैं जिनका बहुत हाई रिस्क जिनमें होता है, उनमें कुछ रोल होता है सर्जरी का, जिसको हम बोलते हैं प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी। प्रोफाइलैक्टिक का मतलब है कैंसर नहीं बना लेकिन हमें पता है बहुत हाई रिस्क ऑफ कैंसर है, 50, 60, 70% रिस्क है कि कैंसर बन जाएगा। तो उन केसेस में उस ऑर्गन को कैंसर बनने से पहले हटा दिया जाता है। और ये भी एक स्पेशल सबसेट होते हैं, ज्यादातर ये जेनेटिक वाले कैंसर होते हैं जो फैमिलीज में रन करते हैं, तो इनका ट्रीटमेंट भी हाईली स्पेशलाइज्ड होता है। तो ये प्रोफिलैक्टिक सर्जरी होती है कुछ ऑर्गन्स के लिए, जैसे कि ब्रेस्ट के लिए होती है, ओवरीज के लिए होती है, यूट्रस के लिए होती है, उनमें जो कि बहुत हाई रिस्क है। ये हर किसी के लिए नहीं है कि हम अपना ऑपरेशन करा लेते हैं ताकि हमें कैंसर, वो आपको फायदा नहीं दे। तो ये है कुछ प्रिकॉशंस और कुछ चीजें जिनसे आप अपना रिस्क कम कर सकते हैं, एक्टिव रहने से, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने से, इन सब से। कितने स्टेजेस हैं कैंसर के? वैसे हर कैंसर को अलग तरीके से स्टेज करते हैं, लेकिन अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो हर कैंसर के 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है जब वो छोटा है और उसी ऑर्गन जहाँ से शुरू हुआ है उसी तक लिमिटेड है, उसको हम बोलते हैं स्टेज 1। इसमें भी अलग अलग सब स्टेजेस होती हैं कैंसर के डिपेंडिंग, वो हम उसमें नहीं जाएंगे। उसके बाद जब कैंसर थोड़ा और बड़ा हो जाता है और आसपास के जो इमीडिएट उसके विसिनिटी में जो ऑर्गन है वहां तक फैलने लगता है, तो उसको हम स्टेज 2 कहते हैं। तो इसका मतलब 1 से बड़ा है लेकिन अभी सारे में नहीं फैला है, लिमिटेड टू उसी ऑर्गन के लिमिटेड है और उसके आसपास के जो थोड़ी बहुत जगह है वहां तक फैलना शुरू हो गया है। फिर स्टेज 3 जो होता है उसमें ज्यादातर ऐसा होता है कि कैंसर उस ऑर्गन से बाहर निकल गया है और लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ चैनल्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं, उनके द्वारा दूसरी जगहों पे पहुंचना शुरू हो गया है। और लिम्फ नोड्स ज्यादातर जब इन्वॉल्व होते हैं तो वो स्टेज 3 हो गया होता है, क्योंकि वो ऑर्गन से आगे जाके, और लिम्फ नोड्स गेट कीपर होते हैं, लिम्फ नोड्स के थ्रू वो फिर सारे लिम्फेटिक सिस्टम में कहीं भी बॉडी में जाके घर कर सकता है। तो दैट ब्रिंग्स अस टू स्टेज 4 कैंसर।
तो स्टेज 4 जो कैंसर होता है वो ज्यादातर जिस ऑर्गन से शुरू हुआ है उससे बहुत दूर तक फैला होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं, तो अगर बच्चेदानी के मुंह का सर्विक्स का ही कैंसर लें हम, अगर सर्विक्स का कैंसर है और वो उसका उसका नोड्यूल हमें लंग में दिख रहा है, कितना दूर है सर्विक्स, और दूसरा कोना बॉडी का लंग में चला गया है या लिवर में चला गया है, तो वो स्टेज 4 हो जाता है। तो जिस ऑर्गन से शुरू हुआ था उसके काफी बियॉन्ड चला गया है ब्लड से और लिम्फ से, ज्यादातर हम इनको फिर स्टेज 4 कहते हैं। डॉक्टर, अगर किसी का स्टेज 4 में डिटेक्ट होता है कि उसे कैंसर है, क्या तब भी वो प्रिवेंटेबल है? अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया है तो हम फिर बात करते हैं कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। ज्यादातर जो स्टेज 4 कैंसर, जैसा कि मैंने बताया, कैंसर सेल अपनी जगह से बहुत दूर दूर पहुंचे होते हैं। जब वो वहां पे घर कर लेते हैं तो उनको जो एनवायरनमेंट मिलती है ग्रो करने की, बॉडी के हर टिश्यू का अलग वो होता है, मेकअप होता है। लिवर के जो सेल हैं वो अलग होते हैं, किडनी के जो सेल हैं वो फर्क होते हैं, लंग के जो सेल हैं वो फर्क होते हैं। तो जब वही ट्यूमर फर्ज करिए ओवरी से निकला और वो जाके इनमें से किसी ऑर्गन में बैठा, तो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से वो ट्यूमर जेनेटिकली म्यूटेट भी हो सकता है। तो इसका मतलब है जो ट्रीटमेंट हम देंगे उस ट्यूमर को हटाने के लिए, वो जरूरी नहीं है उसी तरीके से उस ऑर्गन में काम करे जैसे कि मेन ऑर्गन में करे, क्योंकि वो ट्यूमर की बायोलॉजी चेंज हो गई है उस नए ऑर्गन में रहने से। तो हम जब स्टेज 4 कैंसर होता है तो ट्रीटमेंट जो होता है वो सिर्फ ऑर्गन निकालना नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्गन से परे जा चुका होता है। तो जो सारी बॉडी में जो फैला होता है उसके लिए ज्यादातर कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी का रोल आता है। अगर छोटे छोटे अलग अलग जगहों पर हैं तो रेडिएशन का रोल आता है, अगर बहुत सारे हैं और सारे में फैले हुए हैं तो कीमोथेरेपी का रोल आता है, क्योंकि कीमोथेरेपी नस के द्वारा पूरे सर्कुलेशन में चली जाती है और जहां जहां ट्यूमर के सेल होते हैं वहां उन पे एक्ट करती है। बट जैसा कि मैंने बताया कि जो ट्यूमर का जेनेटिक मेकअप है वो भी चेंज हो सकता है अलग अलग जगह जाके डिपॉजिट होने से, तो इसलिए वो उतना अच्छा हो सकता है ना रिस्पॉन्ड करे। तो स्टेज 4 कैंसर को हम ट्रीट जरूर करते हैं, पर उसका 100% क्योर हो पाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो इतनी सारी जगह पे जाके और हर जगह अलग भी होता है। Doctor, how can technology and innovation help in narrowing the gap for cancer treatment? आजकल हम इतने ज्यादा टेक सेवी हो गए हैं, जैसे हम इंस्टाग्राम पे बैठ के और आपस में इतनी दूर से बैठ के भी इतना कंफर्टेबली बात कर रहे हैं जैसे कि आमने सामने ही बैठे। तो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली मेडिकल फील्ड में भी बहुत एडवांसेस लाई है। जैसे अगर हम सिंपल तरीके से शुरू करें तो डिजिटल रिमाइंडर्स जाते हैं आपको, अगर आपने कुछ ऐसा चीज में एनरोल किया है तो आपको डिजिटल रिमाइंडर जाएगा कि आपके स्क्रीनिंग टेस्ट का टाइम हो गया है या आपके फ्लू वैक्सीन के शॉट का टाइम हो गया है। तो एक तो डिजिटल लिटरेसी बढ़ गई है, एक्सेस बढ़ गया है टू इंफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी की वजह से वी कैन एक्सेस सोशल मीडिया, वी कैन गेट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या चल रहा है मेडिकल फील्ड में। जैसे हम डॉक्टर्स को भी डेली अपडेट्स आते हैं, whether it is from the World Health Organization or it is from other nodal bodies across the world, कि this is the now latest thing that is जो। तो एक तो ये हो गया, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सेस बढ़ गया, लिटरेसी बढ़ गई। दूसरा, अगर हम बात करें डायग्नोसिस पे, तो डायग्नोसिस में भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। आजकल आप एक ब्लड टेस्ट से अपने कैंसर का रिस्क जान सकते हैं, उसको हम लिक्विड बायोप्सी बोलते हैं। तो इस तरह से उसमें मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होती है, मॉलिक्यूलर मार्कर्स एनालाइज होते हैं और आपको पता चल जाता है कि हमें फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है, नहीं है, फैमिलियल है या सिर्फ हमें है। इस तरह से बहुत सारे AI बेस्ड टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि रिपोर्ट भी AI बेस्ड पढ़ लेती है। जैसे मैमोग्राम है, मैमोग्राम को AI बेस्ड आपको रिपोर्ट भी बता देगी कि दिस इज द थिंग, जिसके लिए हमें ट्रेडिशनली एक्सरे खींच के फिर डॉक्टर, तो वो सब प्रोग्रामिंग हैं कि आप सेम पैप स्मीयर की स्लाइड्स बहुत सारे देशों में ऑटोमेटेड रीड होती हैं, उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, सिस्टम में फेड है कि ये लुक्स दिस इज अबनॉर्मल, दिस इज नॉर्मल,
उसमें एल्गोरिदम होता है, जैसे जितना इसमें तो डेटा, जितना ज्यादा डेटा अवेलेबल होगा उतने उतने एक्यूरेट रिजल्ट्स होंगे, उस तरह से बात है. सो ऑल ऑफ दैट डेटा that we can collect that data, we can keep that data. Then when we come to meeting the doctor, we can do it online now. Just before this, I was consulting a patient from Nepal. तो हम आपस में मतलब आमने सामने भी बैठने की जरूरत नहीं है. तो बहुत सारी चीजें मेडिकल एडवांसेस आई हैं जो कि कैंसर के केयर गैप को कम करेगी. यू कैन एक्सेस अ स्पेशलिस्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूजिंग ऑल दीज. ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट में कितने सारे इनोवेशंस आ गए. रोबोटिक सर्जरी एक इनोवेशन है जो मोस्ट एडवांस्ड मिनिमली इन्वेजिव टेक्नोलॉजी है टू ट्रीट कैंसर्स. प्रिसिजन, दिस इज द एरा ऑफ प्रिसिजन मेडिसिन बेसिक. अब हम आ गए हैं इंडिविजुअलाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड प्रिसिजन मेडिसिन. अब हम मासेस के हिसाब से नहीं, हर पर्सन के लिए एक इंडिविजुअल ट्रीटमेंट प्लान चॉक आउट हो सकता है. लेजर्स आ गए हैं बहुत सारे. अगर हम कैंसर की ही बात करें तो इम्यूनोथेरेपी एक चीज है जो 5 साल पहले नहीं. इम्यूनोथेरेपी का मतलब है आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि आप उस कैंसर के जो सेल्स है उसका जेनेटिक्स ही वो कर रहे हो, आप उसको जेनेटिक लेवल पे हिट कर रहे हो. ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास 5 साल पहले इतनी वाइडली अवेलेबल नहीं, 10 साल पहले तो बिल्कुल ही नहीं. सो ये सारी चीजें हो गई. तो दीज आर ऑल थिंग्स व्हिच विल हेल्प टू क्लोज द केयर गैप. एंड इंडिया इज नो फार बिहाइंड. इंडिया में मैंने वो सब टेक्नोलॉजी अब आने शुरू हो गई है जो मैंने लास्ट ईयर कनाडा में देखी थी. तो ये सब अब इंडिया में हमारे, वी आर बिहाइंड नो वन एल्स इन द वर्ल्ड. Doctor, in what ways as a community we can come together and support those who are suffering from cancer? I think COVID has taught us coming together like no other disease has taught us. हमने देखा लोगों ने बाहर आके कितने लोगों की हेल्प करी, खाना दिया, सब दिया. तो उससे हमें पता चलता है कि मानवता अभी भी है. तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं कैंसर सर्वाइवर्स के लिए. उनको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है सबसे ज्यादा, बिकॉज ऐसे टाइम्स आएंगे जब वो बहुत डिप्रेस्ड फील करेंगे, बहुत एंग्शियस फील करेंगे, दे विल गिव अप होप. तो एट दैट पॉइंट दे नीड इमोशनल सपोर्ट. वो फैमिली मेंबर से आ सकता है, वो फ्रेंड से आ सकता है, वो किसी सपोर्ट ग्रुप से भी आ सकता है. अलग अलग चैनल्स हैं. दूसरा, आप कैंसर सर्वाइवर्स के साथ आप कुछ रीडिंग क्लब्स बना सकते हो, कुछ शॉपिंग जा सकते हो. उनकी हो सकता है कुछ रिक्वायरमेंट्स हो कि आप उनको, दे हैव अ पेट और दे हैव अ स्मॉल चाइल्ड, जिसके लिए उनको हेल्प चाहिए जो वो खुद नहीं मैनेज कर पा रहे अपनी इलनेस से. तो कम्युनिटीज कैन कम टुगेदर टू हेल्प विद चाइल्ड केयर, टू हेल्प विद ग्रोसरीज खरीदना, फॉर एग्जांपल राशन का खाना बना के आप भेज सकते हो. बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं. उनके साथ सिर्फ बैठ के टाइम स्पेंड करना भी एक बहुत अच्छी चीज है. उसके अलावा if they have some question, you can always ask कि आप how can I help. सबसे best question I believe which is the best is how can I help. Instead of imposing कि आपको ये चाहिए, वो बेस्ट रहता है. उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है. उनको you can encourage them to indulge in activities कि maintain flexibility around them. Basically बहुत सारी चीजें उनके डॉग वॉक करा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो. ये छोटी छोटी चीजें होती है बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती है. तो एज कम्युनिटी हमें छोटी छोटी चीजों से हम किसी की लाइफ में एक बहुत बड़ा सा इम्पैक्ट ला सकते हैं. इमोशनली एक इंसान को सपोर्ट करना ही सबसे बड़ा सपोर्ट होता